اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم ترحم، مہربانی کیجئے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ ارحم ترحم، مہربانی کیجئے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ بحث ہماری کتاب الزکوٰۃ میں آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَفِي الْبَقَرِ نِصَابَانِ ثَلَاثُونَ فَطَبِيٌّ أَوْ طَبْعِيَّةٌ۔ توجہ فرمائیں میرے عزیزو، آج ہم گائے کے نصاب پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں گائے کے دو نصاب ہیں، 30 اور 40۔ 30 ایک نصاب ہے گائے کا اور دوسرا 40 ہے۔ گائے کے نصاب ہی دو ہیں، ایک 30 ہے اور دوسرا 40 ہے۔ 30 پہ ہو تو ایک طبیعیہ دیں گے، یعنی ایک بچھڑا دیں گے گائے کا جو دوسرے سال میں داخل ہو، اور یا طبیعیہ دیں گے یعنی یا بچھڑی دیں گے، بچھڑا دیں گے یا بچھڑی دیں گے، طبیعیہ یعنی بچھڑی دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس دینے میں اختیار ہے۔ گائے کے دو نصاب ہیں، ایک 30 ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، اور ایک 40 ہے۔ 30 پہ جو ہے نا ایک طبیعی ہے یا طبیعیہ ہے۔ طبعیون یعنی بچھڑا دینا ہے جو دوسرے سال میں ہو، طبیعیہ ہے یعنی بچھڑی دینی ہے، بچھڑی دینی ہے۔ تو یہ ایک ہو گئی۔ 40 جو ہے اس پہ مسنہ ہیں، مسنہ یعنی ایک مؤنث دینی ہے، بچھڑی دینی ہے جو کہ جناب علی کیا ہو، دوسرے سال کے درمیان ہو، سنوا ما بین سنتین، ٹھیک ہے، 2 سال سے لے کر تیسرے سال تک ہو، یہ دینی ہے۔ مسن دینا جب نصاب 40 ہے تو مسنہ دینی ہے، مسن دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ تو ہو گیا جناب گائے کے نصاب۔ گائے کے نصاب دو ہو گئے، ایک 30 ہو گیا اور دوسرا 40 ہو گیا۔ 30 پہ بچھڑا یا بچھڑی وہ دے سکتے ہیں، اور 40 پہ جو ہے نا بچھڑی دینی ہے جو کہ دوسرے سے تیسرے سال میں داخل ہو، بچھڑا نہیں دے سکتے ہیں 40 والی صورت میں۔ پھر جناب آ جائیں گے جی بیڑوں کے نصاب۔ توجہ فرماؤ، بیڑوں کے نصاب 5 ہیں۔ پہلے 40 کے اوپر ایک بھیڑ ہے، پھر 121 ہے دوسرا نصاب۔ پہلا نصاب بیڑوں کا 40 ہے، 40 بیڑوں پہ ہونی ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ 40 بیڑوں میں تو ایک بھیڑ دینی پڑتی ہے۔ دوسرا نصاب بنتا ہے 121، ٹھیک ہے، 121 ہے، اس پر 2 بھیڑیں ہوتی ہیں۔ تیسرا نصاب جو ہے وہ 201 ہے، اس پر 3 بھیڑیں ہوں گی، اور چوتھا نصاب 301 ہے، اس پر 4 بھیڑیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد 5واں نصاب سمہ کہا ہے، سمہ فی کل مئۃ شاۃ، پھر ہر 100 کے اوپر کیا ہے جی ایک شاۃ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں پھر ایک اشکال آ جائے گا کہ یہ جو کہا ہے نا چوتھے نصاب کے بعد 301 میں 4 ہیں، اور 301 کے بعد سمہ، 301 کے بعد کہا ہے سمہ، عبارت میں دیکھو نا، سمہ فی کل مئۃ شاۃ، ہر 100 کے اوپر ایک بھیڑ ہے۔ نہیں کہا ہے 301 کے بعد جب 400 ہو جائے، یہ تو شہید ثانی نے کہا ہے۔ اس میں پھر اشکال آ جائے گا کہ آپ کی بات سمہ تو 350 کو بھی شامل ہے، 301 سے آگے نکلیں اور 350 تک ہو جائیں تو پھر 3 دینی پڑیں گی۔ 301 پہ 4 اور 350 پہ 3، اشکال آ جائے گا مصنف کے اس سمہ کہنے میں۔ 301 والا نصاب جو ہے چوتھا، اس کے بعد جو کہا ہے نا سمہ ہر 100 کے اوپر ایک بھیڑ ہے، اس میں پھر وہی اشکال ہے جو پہلے اونٹوں کی طرح ایک اشکال پہلے اونٹوں پہ بھی آیا تھا 11ویں نصاب کے بعد، ٹھیک ہے یہ نہیں، پچھلی بات دیکھو گے نا تو یہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جناب علی اشکال ہے کہ مصنف جو کہہ رہے ہیں 301 کے بعد
फिर हर 100 के ऊपर एक भेड़ है, तो किसी के पास 301 के बाद हो, मसलन ऊपर चलती चलती 350 हो जाए, 350 पे कितनी उसको भेड़ें देनी पड़ती हैं? 3, 301 के कितनी थी? 4। तो फिर ये इश्काल है या नहीं कि 301 पे आपकी बात ये है, 301 पे 4 है और 350 पे मसलन क्या है? 3 बन रही हैं। तो इसमें मुसन्निफ के कलाम में सुम्मा कहने में जो 5वां निसाब बताया है, ठीक है ना, इसमें इजमाल पाया जाता है, इसमें इजमाल पाया जाता है। लेकिन इसका जवाब ये दिया गया है कि मुसन्निफ ने निसाब मशहूर के ऊपर इक्तफा किया है, ठीक है या नहीं? मशहूर निसाब क्या है? 301 के बाद 400 है। मुसन्निफ ने उसी मशहूर वाली बात को मद्देनजर रखकर जो है छोड़ दिया है, निसाब मशहूर के ऊपर इक्तफा किया है, चूंकि दरमियान में तो कोई वास्ता ही नहीं है, 301 और 400 के दरमियान तो कोई निसाब है ही नहीं, तो मुसन्निफ ने वही मशहूर की बात के ऊपर इक्तफा किया है और खुद जिक्र नहीं किया है। यहां तक पढ़ लेता हूं, फिर अगली बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। वफिल बकरे निसाबान सलासूना फतबीयुन औ तबईयतुन, बकर में 2 निसाबें सलासून 30 पे, फतबीयुन एक बिछड़ा है, वह हुआ इब्न सनतिन इला सनतैन, तबी क्या है? वो नर है जो इला सनतैन दूसरे साल में दाखिल हो, और तबीयतुन या बिछड़ी है गाय की, मुखय्यरुन फी ज़ालिका इस नर और मादा के देने में उसको इख्तियार है। सुम्मिया बिज़ालिका नाम रखा गया ज़ालिका तबी, तबीयुन या तबीया, ये जो नाम रखा गया ज़ालिका क्यों? लिअन्नहु तबकरनहु उज़ुनहु, इसलिए कि इसका जो करनहु, इसके जो सींग है ना, उज़ुनहु उसके कान के ताबे होते हैं, कान भी छोटे छोटे, सींग भी साथ साथ छोटे छोटे होते हैं। लिअन्नहु तबकरनहु उज़ुनहु, इसलिए कि इसके सींग, उज़ुनहु उसके कान के ताबे होते हैं, या दूसरी वजह यह है औ तबा उम्महु फिल मरआ, या इसकी माँ जो है चरागाह चरने में, औ तबा उम्महु फिल मरआ, या ये जो तबिया है ना, तभी ये अपनी माँ के चरने में पैरवी करती है, जहाँ जहाँ माँ चरती है उसके साथ साथ चरती है। औ तबा उम्महु फिल मरआ, या ये पैरवी करती है अपनी माँ की फिल मरआ चरने में, इस वजह से इसको तबीयुन कहते हैं या तबिया। व अरबाउन, और दूसरा निसाब क्या है? 40 है। फमुसिन्नतुन, फमुसिन्नतुन उनसा सिन्नुहा मा बैन सनतैन इला सलास, 40 जो है उस पे क्या है? मुसिन्ना है, उनसा मुसिन्ना है, सिन्नुहा मा बैन सनतैन इला सलास, जिसकी उम्र दूसरे साल से तीसरे साल में होती है। वला युजजिल मुसिन, मुसिन जैद नहीं है, यानी मुजक्कर जैद नहीं है, बिछड़ी देनी है भाई, मुसिन्ना। वहाँ कदा अबदान, और इसी तरह हमेशा यो तबर बिल मुताबक मिनल अददैन, 2 अद्दों में मुताबक मोतबर है। व बेहिमा मा मुताबकत हिमा, बेहिमा 30 और 40 दोनों के जरिए, मा मुताबकत हिमा जब दोनों के साथ मुताबकत हो, का 60 बे सलासीन, जैसे 60 है वो 30 से हिसाब करेंगे, 60 गाय है ना, तो फिर 30 से हिसाब कर लेंगे, ठीक है। वसबईन और 70 हैं तो बेहिमा दोनों से कर सकते हैं, एक 30 से और दूसरा 40 से, 40 और 30 70 हो गया। वसमानीन बिल अरबाइन और 80 हैं तो 40 से हिसाब करेंगे। वही तखय्यर फिल मियत व 20, इख्तियार है फिल मियत व 20, ठीक है ना। 120 में क्या है? उसको इख्तियार है, 120 में उसको इख्तियार है, किस से हिसाब करे? 30 से करे या 40 से हिसाब करे? तमाम जी। भेड़ों के निसाब आगा रजन वलिल गन्नम खमसतो, 900 भेड़ों के 5 निसाब हैं। अरबउन फशातुन, 40 पर एक भेड़ है। सुमा मियतुन वहिदा व 20, फिर 121 पे फशातान 2 भेड़े हैं। सुमा मियतान व वाहिदतुन फसलास, फिर 201 पे 3 भेड़े हैं, ये तीसरा निसाब। चौथा जी सुमा सलासो मियतन व वाहिदतुन फअरबउन अललकवा, फिर 301 पे फअरबउन 4 हैं, अललकवा बिना बरकौले
अकवा, चौथा निसाब हो गया जी 301। इस पर कितनी भेड़े हो गई? 4 बिना कौले अकवा। लेकिन यहाँ वकील सलासुन, एक कील है 3 है। ये कील ज़हरन निस्बत दी गई है शेख सदूक अलैहि रहमा की तरफ। वो कहते हैं कि 301 पे 4 नहीं है, कीला सलासुन 3 है। दलील नजरन इला नौ आखिर नसब, नजर करते हुए कि ये आखिरी निसाब है। व नफी कुल्ले मियातिन हीनाइदिन शातुन, और हर मिया पे हीनाइदिन इस वक्त क्या है? भेड़ है। बालिगन मा बलगा बलगत, इतना भी ऊपर चला जाए, हर 100 पे क्या है? भेड़ है। व मनशा खिलाफ इख्तिलाफ रिवायात ज़ाहिरन, मनशा खिलाफ के उस कील का और पीछे वाले मशहूर का जो नजरिया है, मनशाउल खिलाफ यानी ये कील जो शेख सदूक की है और वो जो मशहूर है, उनमें इख्तिलाफ का मंशा क्या है? इख्तिलाफ रिवायात ज़ाहिरन, ज़ाहिरन रिवायात का इख्तिलाफ है। व असा हुआ सनदन मा दल्ला अला सानी, असा है रिवायात जो सनद के एतबार से वो हैं जो दलालत करती हैं सानी पर। सानी यानी वो कील वाले कौल पर जो शेख सदूक का है कि 3 हैं, 3। सानी यानी वो कील वाला कौल जो कहती हैं 3। व असा हुआ सनदन, असा रिवायात जो सनद के एतबार से हैं वो हैं जो दलालत करती हैं सानी पर, यानी किस पे? 3 पर, जो शेख सदूक का कौल है। व अशर बैन साहब मादल्ला अव्वल, और अशर रिवायात जो साहब के दरमियान है वो हैं जो दलालत करती हैं अव्वल पर। अव्वल यानी वो कौल मशहूर जो कहता है 4 हैं, जो कहता है 4 हैं। ठीक हो गई बात। सुम्मा, फिर यहां से 5वां निसाब है भेड़ों का। सुम्मा इज़ा बलगत अरबा मिया फसायदन फी कुल्ल मियातिन शातुन, फिर जब वो 400 तक पहुंच जाए या उससे ज्यादा तो हर 100 पे भेड़ है। तो यहां शहीद सानी फरमाते हैं वफी इजमालुन कमा सबक फी आखिर नुसबे लेबले, इबारत मुसन्निफ में इजमाल है जैसा कि गुजरा है आखिर नुसबे एबिल में, एबिल के आखिरी निसाब में जैसे गुजरा है यहां भी इजमाल है। क्यों? ले शुमूल मादादान अनसलासमियतिन व वाहिदा, क्योंकि इबारत मुसन्निफ ले शुमूल ही इबारत मुसन्निफ शामिल है मादादान सलासमियतिन व वाहिदतिन, जो 301 से ज्यादा है। वलम तबलुग अरबा मिया, और 400 तक ना पहुंचे। मुसन्निफ की इबारत तो शामिल है जो 301 से ज्यादा और 400 तक ना भी पहुंचे, मसलन 350 तक पहुंच जाए उसको भी शामिल है। खासतन, ये इबारत मुसन्निफ का लाजमा ये है कि 3 भेड़े हों खास तौर पर वाजिब। ठीक, तवज्जो फरमाई। वल्लकिन्नहु इक्तफा बिन्निसाब मशहूर, शहीद सानी फरमाते हैं लकिन्नहु, लेकिन मुसन्निफ ने इक्तफा किया है निसाब मशहूर पर। निसाब मशहूर क्या है? 301 के बाद 400 है भाई। इज़ ला काइल बिल वासिता, क्योंकि वासिता का कोई कायल नहीं है कि 301 और 400 के दरमियान भी कोई निसाब हो, इसका कोई भी कायल नहीं है। तो जब 301 के बाद सुम्मा की बात की तो समझ लो ना अगला निसाब है ही 400, क्योंकि दरमियान में तो कोई और कौल है ही नहीं। वल्लकिन्नहु इक्तफा बिन्निसाब मशहूर, लेकिन्नहु मुसन्निफ ने इक्तफा किया निसाब मशहूर पर। इज़ ला काइल बिल वास्ता, क्योंकि वास्ता का कोई कायल नहीं है। वास्ता यानी 301 और 400 के दरमियान कोई वास्ता वाला कौल वो कोई नहीं है। इज़ ला काइल बिल वास्ता, क्योंकि कोई कायल नहीं है वास्ता का, दरमियानी कौल का। तमाम शुद्ध जी। अब बात ये करनी है आगा जान के जब भी निसाब से कम हो ना इन तीनों में, चाहे वो अनाम सलासा हूं, अनाम सलासा यानी अनाम सलासा में, ठीक है ना, जब भी निसाब से कोई चीज कम हो जाती है, ठीक है ना, तो वो माफ है। कुल्लमा नाकसान निसाब अफवन, यानी बस आगे कुलिया कायदा दे रहे हैं, जब भी निसाब से कम हो तो वो क्या है? माफ है। इन अनाम सलासा में जब भी निसाब से कोई चीज कम होगी उस पे माफ है। और इसी तरह दो निसाबों के दरमियान जो आएंगे उन पे भी क्या हो जाएगा? माफ होगा। जब भी पूरा निसाब नहीं होता, ठीक है या नहीं, उससे जो कम है उस पर क्या है गजान? माफ है। ठीक है। और जो दो निसाबों के दरमियान है
पहला निसाब हुआ और फिर ज्यादा होता गया और अगला निसाब पूरा नहीं हुआ, तो जो पहले निसाब पे ज़कात है जब तक दूसरे तक नहीं पहुंचता, आगे जितने भी हैं वो ज्यादा, वो भी क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। ठीक हो गई बात आगे जान? बड़ी सादा सी बात है। मसलन किसी के पास जो है 4 ऊंट हैं, निसाब से कम है ना तो ज़कात नहीं है, 5 होंगे तो ज़कात होगी, फिर 9 हैं फिर भी एक ही यानी 5 ऊंटों वाला निसाब होगा, 4 पे क्या होगी, माफ होगा। जब तक 10 नहीं होते, ऊपर वाले 5 से लेकर 9 ऊंट जो है ना, जो दरमियान में आ गए 6, 7, 8, 9, इन 4 पर ज़कात क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। इसी तरह आप तवज्जो करें, भेड़ों का पहला निसाब कितना है जी, 40, दूसरा कितना है जी, 121, दरमियान में कितनी भेड़ें बनती हैं, 80, तो इन पे ज़कात क्या है, माफ है। 40 से लेकर किसी की आगे 120 तक पहुंच जाए तो फिर भी एक ही भेड़ उसको देनी है जब तक 121 ना हो जाए। यह कहना चाहता हूं कि यानी एक निसाब से लेकर अगले निसाब तक जब तक पूरा नहीं होता, सब पे क्या है, माफी है, उस पे क्या हो जाएगा, माफ है, उस पे माफ है। तो ये बात तो हो गई जी कि जब भी कोई चीज निसाब से कम है तो उस पर ज़कात नहीं है, माफ है, चाहे पहले निसाब से कम हो या 2 निसाबों के दरमियान जो भी आता जाएगा वो क्या होता जाएगा, माफ होता जाएगा। यहाँ एक आखिरी मतलब और आप भाइयों की इजामत तमाम, वो ये है कि भाई आपने कहा 301 हो तो भी 4, चौथा जो निसाब था 301 उस पर भी 4, और 400 हो तो उस पर भी 4, तो फायदा क्या जाहिर होगा, 301 पर भी 4 है, 400 पर भी 4 है, 4 भेड़े हैं, यानी 301 पर भी 4 भेड़े हैं, 400 पर भी 4 भेड़े हैं, तो फायदा कहां जाहिर होगा जी, फायदा वहां जाहिर होना मेरे आगा जान जब इस निसाब से कोई चीज तलफ हो जाती है। 301 निसाब था, उससे एक भेड़ क्या हो गई, तलफ हो गई, तो वो जो एक तलफ हुई है वो 301 के एतबार से 301 के एतबार से उसका फिर हिसाब लगाएंगे, और इसी 301 के एतबार से वो जो 4 भेड़ों पे ज़कात है उतनी मिकदार में उनसे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर 400 के हिसाब से हम कर रहे हैं, 400 भेड़ों पर भी 4 हैं और एक तलफ होती है, तो फिर जो हिसाब करना है कमी बेशी का वो 400 के एतबार से करेंगे। फर्क पड़ेगा दोनों निसाबों में। दोबारा सुने भाई, अगर हम कहें 301 पर भी 4, 400 पे भी 4, तो फायदा कहां जाहिर होगा, फायदा जाहिर होगा जब कोई एक भेड़ तलफ होती है ना, उस वक्त फायदा होगा। जब एक तलफ होती है 301 पर जब 4 हैं, तो हिसाब जब हमने करना है 4 पे जो कम करनी है ज़कात, 4 भेड़ों पे भी जो नुकसान आएगा और थोड़ी ज़कात कम पड़ेगी वो 301 के एतबार से होगी, और 400 पे भी जब 4 हैं तो अगर कोई तलफ होती तो फिर 400 के हिसाब से आपने उसको कम करना है। फर्क पड़ता है। तलफ की सूरत में फायदा जाहिर होता है, मुख्तसर कहूं तो। ठीक है, तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। सुम्मा, ये जो 5वां निसाब है, इज़ा बलगत 400 फसायदन, जब फिर वो पहुंच जाए 400 फसायदन, ये 400 से ज्यादा, फी कुल्ल मियतिन शातुन, तो हर 100 पे भेड़े, वफी इजमाल कमा सबक फी आखिरी नुसुबिल एबिल, फी ऐसी इबारत मुसन्नम इजमाल है जैसा कि गुजरा आखिरी नुसुब एबिल में, लिशुमूल इमाज़ादन सलासमियतिन व वाहिद, क्योंकि इबारत मुसन्नफ शामिल है 301 से ज्यादा को भी, वलम तबलुग 400 और 400 तक ना भी पहुंचे तो इबारत मुसन्नफ शामिल है। फ़इन्नहु यस्तलज़िमु वुजूब सलास अशिया खासतन, इबारत मुसन्नफ का लाज़िम ये 3 भेड़ें वाजिब हैं। वलकिन्नहु इक्तफ़ा बिन्निसाबिल मशहूर, शहीद सानी फरमाए लेकिन मुसन्नफ ने इक्तफ़ा किया है निसाब मशहूर पर। निसाब मशहूर 400 तक है, पीछे कोई है ही कोई नहीं। इज़ला काइला बिल वास्ते, क्योंकि वास्ते का कोई कायल नहीं है। वास्ता किस किस में, 301 और 4 में कोई वास्ता वाला कौल ही नहीं है। तो वाज़ेह सी बात थी कि 301 के बाद जब सारे कहते हैं 400 तो मुसन्निफ की मुराद भी
यही थी, दरमियान में कोई और कौल है ही नहीं। वकुल्लमा नकसन निसाब फी सलासते, जब भी निसाब कम हो जाए सलासा यानी नाम सलासा में, वह हुआ तवज्जो वह हुआ मा बैन निसाबैन व मा दून अल-अव्वले, और वो क्या है, दो निसाबों के दरमियान और पहले निसाब से क्या है, कम है। वह हुआ मा बैन निसाबैन, वो क्या है, जो दो निसाबों के दरमियान है और पहले निसाब से भी कम है। फ़अफ़्वुन, तो वो क्या है जी, माफ है। कलरब मिनल एबेले बैन नुसबिल खमसा, 5 निसाबों में से ऊंट के जैसे 4 हैं, 5 निसाब जो है ऊंटों के दरमियान में जो 4 आ रहे हैं उन पे क्या है, माफ है। कलरबा मिनल एबेले, जैसे 4 ऊंट, बैन नुसबिल खमसा, 5 निसाबों में से जो 4 ऊंट हैं जैसे, व कबलहा, और 5 निसाबों से जो पहले हैं मसलन 4 ऊंट थे उन पे भी माफ है। व तिस ए बैन निसाबी अल बकरे, और 9 जो बकर के गाय के 2 निसाबों के दरमियान जो 9 हैं उन पर भी माफ है। यानी पहला 30 है और फिर 39 है, तो ये जो 9 इन पे माफ है जब तक 40 नहीं होता। व तिस आशरा बादहुमा, और 19 पे माफ है बादहुमा, इन 2 निसाबों के बाद। 40 के बाद क्या आना है जी, 40 के बाद निसाब आगे कितने पे हिसाब हो सकता है, 40 के बाद 60 पे हो सकता है ना, ठीक है। तो 19 हुई तो फिर उन पे क्या हो जाएगी, माफ है। बादहुमा, इन 2 निसाबों के बाद 19 पर भी माफ है। वसमानी बैन निसाबी अल गनम, और 80 जो भेड़ के 2 निसाबों के दरमियान, 40 और 21 के दरमियान जो 80 है उस पर भी माफ है। माफ का क्या माना है, वह माना कौन अफवन अदम ताल्लुक वजूब बेहा, माना कौन इस ज्यादती पे अफ है, माफ है। माना क्या है, अदम ताल्लुक वजूब बेहा, के इस पर वजूब ज़कात का ताल्लुक नहीं है। अफ का मतलब ये है कि इस पर वजूब ज़कात का ताल्लुक नहीं है। फला यसकुतु बितलफ़िहा बादल औले शैउन, फला यसकुतु बितलफ़िहा, ठीक है ना, तलफ की सूरत में, ठीक, बादल हौल, साल के बाद तलफ की सूरत में कोई चीज साकित नहीं होगी। बेखिलाफ तलफ बाज़ निसाब बगैर तफरीत, बेखिलाफ उसके कि बाज़ निसाब तलफ हो जाता है बगैर कोताही के, ठीक, बाज़ निसाब क्या हो जाता है, तलफ हो जाता है। फ़इन्नहु यसकुतु मिनल वाजिब बेहिसाबिही, फ़इन्नहु, तो ये तलफ साकित होगा वाजिब ज़कात से भी, बेहिसाब तलफ, जितना तलफ हुआ है उस एतबार से वाजिब ज़कात से भी क्या हो जाएगा, वो साकित हो जाएगा। व मिन तज़हरु फ़ैदतुन निसाबैन अल-अख़ीरैन मिन अल-गनम अला अल-कौलैन, और फ़ायदा ज़ाहिर होगा 2 निसाब आखिरी जो हैं गनम के, 301 पर भी 4, 400 पर भी 4, इसका फ़ायदा अलल कौलैन, दोनों कौलों का। व मिन हो तज़हरुल फ़ैदतुन निसाबैन अल-अख़ीरैन मिन अल-गनम अला अल-कौलैन, फ़ायदा ज़ाहिर होगा 2 निसाब आखिरी का, मिन अल-गनम, गनम के 2 निसाब आखिरी, 301 पर भी 4, 400 पर भी 4, अलल कौलैन, दोनों कौलों की बिना पर ज़ाहिर होगा। फ़इन्न वुजूब अल-अर्बा फ़िल अज़यद वलन कद यख्तलिफ़ु हुक्मु मा तलफ़ बाज़ निसाब, 4 का वाजिब होना फ़िल अज़यद यानी 400 पर भी, वलन कस और 301 पर भी, ये 4 का वाजिब होना अज़यद और अनकस, अज़यद 400 और अनकस 301 पर, यख्तलिफ़ु हुक्मु मा तलफ़ बाज़ निसाब, ठीक है ना, हुक्म निसाब मुख्तलिफ हो जाता है, मा तलफ़ बाज़ निसाब, बाज़ निसाब के तलफ होने की सूरत में, कज़ालिक यानी बगैर तफरीद के। फ़यस्कुतु मिनल वाजिब बिनिस्बत मा एतबरा मिन निसाब, पास वाजिब से साकित हो जाएगा, वाजिब ज़कात से साकित होगा, बिनिस्बत मा एतबरा मिन निसाब, जो निसाब में मोतबर है। मसलन फ़बिल वाहिदति मिन सलासमियतिन व वाहिदा जुज़्ज़ुन मिन सलासमिया जुज़्ज़िन व जुज़्ज़िन मिन अरबा, फ़बिल वाहिदते यानी एक जो तलफ हुई है भेड़, फ़बिल वाहिदते का इशारा यानी एक भेड़ जो तलफ हुई है, ये एक, मिन सलासमियतिन व वाहिद, ये 301 का भी क्या है वजन, एक जो फ़बिल वाहिदते, एक जो तलफ है किससे, मिन सलासमियतिन व वाहिद, 301 से जो एक तलफ हुई है, ये एक जो तलफ हुई 301 से, जुज़्उन मिन सलासमियतिन जुज़्ज़िन व जुज़्ज़िन मिन अरबा, ये जुज़ है 300 का भी जुज़ है, व जुज़्ज़िन मिन अरबा, और यही जुज़ अरबा 4 का भी
जुज है, यानी ये जुज जो तलफ हुआ ये साकित होगा। जुज उन फाइल यस्कुत मुकद्दर का, यस्कुत जुजुन मिन सलासमिया जुजन व जुजन मिन अरबा, यही जुज यार जो 301 से एक तलफ हुई है, ये एक जो है उन 300 पे भी गिरेगी, ठीक है, उसका भी जुज है और 4 का भी ये जुज है। ये नहीं मतलब है ये जो 4 बेड़े हैं ना, 4 बेड़े, उससे भी ये क्या है, साकित होगा ये जुज, ठीक है। दोबारा फबिल वाहिदति मिन सलासमियतिन व वाहिदुन जुज़्ज़ुन मिन सलासमियतिन जुज़्ज़ुन व जुज़्ज़ुन मिन अरबा, फबिल वाहिदति एक जो तलफ हुई है ये, मिन सलासमियतिन व वाहिद जुज़्ज़ुन, ये जो एक तलफ हुई है 301 से जो एक तलफ हुई है, जुज़्उन मिन सलासमियति जुज़्ज़ुन व जुज़्ज़ुन मिन अरबा, ये जुज़ है 300 का भी और ये जुज़ है 4 का भी, ठीक है। व मिनल अरबा मियतिन जुज मिन अरबा मियतिन जुज मिनहा, फबिल वाहिदा को इधर से ले आओ, उधर था पहले पढ़ा ना फबिल वाहिदति मिन सलासा मियतिन व वाहिद, अब कहो फबिल वाहिदति मिनल अरबा मियतिन, एक जो तलफ हुई है 400 से जो एक तलफ हुई है, जुज़्ज़ुन मिन अरबा मिया, ये 400 का भी जुज है, जुज़्ज़ुन मिनहा और उस अरबा का भी जुज है। यानी मैं आपको अपने थोड़ा सादा लफ्जों में कोशिश करके बताऊं ना, तो ये मैं कहना चाहता हूं अपने भाइयों की खिदमत में कि भाई अगर हम कहें कि 301 पर भी 4 भेड़े हैं, 400 भेड़े हूं तो फिर भी 4 हैं, तो फायदा कहां जाहिर होगा। मैंने अर्ज किया अपने भाइयों को कि फायदा तलफ की सूरत में जाहिर होगा। अगर कोई इनमें से तलफ होती है तो फिर वो तलफ होने का जो हिसाब है वो 301 के एतबार से हमने तलफ का हिसाब करना है, ठीक है। और वो जो 4 भेड़े वाजिब हैं वो 301 के मद्देनजर रखकर 4 पर नुकसान तकसीम करेंगे, 4 पर 301 को मद्देनजर रखकर 4 पर नुकसान आएगा। और अगर 400 पर 4 भेड़े हैं और एक तलफ होती है तो फिर 400 को मद्देनजर रखकर 4 के ऊपर जो कमी आएगी वो आएगी। ये नहीं आपने उस एतबार से फर्क तो पड़ जाएगा, ऑटोमेटिक जब हिसाब किताब होगा तो उसके ऊपर फिर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या नतीजा निकला जी कि 301 पर भी कहते हो 4, 400 पर भी 4, तो फायदा कहां जाहिर होना है। फायदा की फकीर सराप तकसीर अख्तर ये कह रहा है कि फायदा अजीजो तलफ की सूरत में जाहिर होना है। जब तलफ होगा 301 से कोई, तो फिर हिसाब भी 301 के हिसाब से होगा और 4 पे भी कमी आएगी 301 को मद्देनजर रखकर। और अगर 400 में से कोई कम हुई है तो फिर हिसाब 400 को मद्देनजर रखकर होगा और 4 पे भी कमी आएगी और उधर 400 पे भी कमी आएगी। परसेंटेज कहते हैं ना, हर एतबार से उसी के मुताबिक निकालनी होगी, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात आप भाइयों की खिदमत में ये आसान तरीके से ना पहुंच गई होगी। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे अजीजों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।